بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تو سر شام ہی دھند پڑنا شروع ہو گئی تھی اور سردی کی شدت میں بھی اضافہ ہو چکا تھا۔ ٹھنڈی ہوائیں جسم کے آر پار چیرتے ہوئے محسوس ہو رہی تھیں، لیکن اس وقت بھی میں اپنے گھر واپس نہ جا سکتی تھی کیونکہ میں خالی ہاتھ تھی، اور میں اس سردی کے موسم میں گھر خالی ہاتھ واپس نہ جانا چاہتی تھی۔ میں جانتی تھی کہ میری چھوٹی بہنیں اور معذور باپ میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ اگر میں خالی ہاتھ گھر واپس گئی تو آج رات ہم سب کو بھوکا سونا پڑے گا۔ سردی کی شدت میں اضافے کی وجہ سے گلیاں اور بازار سنسان ہی پڑے ہوئے تھے، صرف آوارہ کتے ہی گلیوں میں گھومتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اب تک مجھے کسی نے کوئی بھیک نہ دی تھی۔ اگر کوئی شخص میرے سامنے آتا تو میں اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتی نہ۔ لوگ دکانوں میں بھی آدھے دروازے بند کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ ایسے میں مجھے کچھ سمجھ نہ آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ بازار سے نکل کر میں رہائشی علاقے میں آ گئی، گلیوں میں ادھر ادھر گھومنے لگی۔ میں ہر گھر کے سامنے رک کر دروازہ کھٹکھٹاتی یا بیل بجاتی، لیکن شاید لوگ گرم بستروں سے باہر نکلنا ہی پسند نہ کر رہے تھے۔ 2-3 گھروں سے خالی ہاتھ ہی واپس لوٹ رہی تھی۔ ایک گھر کے دروازے پر چھوٹا سا بچہ آیا۔ میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی اس نے میرے سامنے 2 ہاتھ جوڑ کر کہا، بی بی معاف کرو، اور دروازہ بند کر کے واپس پلٹ گیا۔ میں اس سے کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن اس نے میری بات سننا ہی گوارا نہ کیا۔ اب تو میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں اونچی اونچی آواز سے رونا شروع کر دوں۔ میں بہت پریشان تھی کہ کس منہ سے گھر جاؤں۔ ٹوٹی ہوئی جھونپڑی میں میرا معذور باپ اور چھوٹی بہنیں انتظار کر رہے تھے۔ میں لوگوں سے مایوس ہو چکی تھی، اس لیے کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر آگے بڑھتی رہی۔ مختلف گلیوں سے گھومتے ہوئے میں نہ جانے کتنی دور آ گئی تھی۔ یہاں پر تو اب گھر بھی ایک دوسرے سے فاصلے پر بنے ہوئے تھے۔ یہ کوئی کم آبادی والا ویران علاقہ تھا۔ آخرکار میں سب سے آخری گھر کے دروازے پر پہنچ گئی۔ میں اس سے بھی آگے بڑھنا چاہتی تھی، لیکن اس سے آگے جانا ممکن نہ تھا کیونکہ یہ محلے کا سب سے آخری گھر تھا۔ اس سے آگے ایک بڑی سی کھائی تھی۔ شام ہونے کے بعد اب تو اندھیرا چھانے لگا تھا۔ اس آخری گھر سے تھوڑا آگے بڑھ کر ایک پتھر پر بیٹھ کر میں رونے لگی۔ میرے آنسو تھمنے کا نام ہی نہ لے رہے تھے۔ میں خود بھی تو بہت بھوکی تھی۔ صبح ناشتے کے نام پر صرف ہم سب نے ایک ایک کپ قہوہ پیا تھا۔ میں تو صبح ہوتے ہی بھیک مانگنے کے لیے گھر سے نکل آتی تھی، لیکن آج صبح تو دھند کی وجہ سے کچھ دکھائی نہ دے رہا تھا۔ میں انتظار کر رہی تھی کہ شاید دھند کی شدت میں کچھ کمی واقع ہو تو پھر میں گھر سے باہر نکلوں، لیکن سارا دن سورج دکھائی نہ دیا تو نہ چاہتے ہوئے بھی میں اسی دھند میں سردی میں مجھے گھر سے باہر نکلنا پڑا۔ شہر کے حالات تو بہت بدل چکے تھے۔ سردی کی شدت سے بچنے کے لیے لوگ جلد ہی گھروں کو روانہ ہو گئے تھے، اس لیے مجھے کہیں سے بھی مدد نہ مل رہی تھی۔ روتے ہوئے نہ جانے کتنی دیر ہو گئی تھی کہ مجھے اپنے پاس کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ گردن اٹھا کر دیکھا تو میرے سامنے ہی ایک خوبرو نوجوان کھڑا میری طرف متوجہ تھا۔ اسے دیکھ کر میں گھبرا گئی اور پھٹی ہوئی چادر سے خود کو ڈھانپنے لگی۔ تم کیوں رو رہی ہو؟ تمہارے رونے سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے، میری طرف دیکھتے ہوئے اس نوجوان نے پوچھا۔ میں معذرت چاہتی ہوں کہ میری وجہ سے تمہیں تکلیف ہوئی، اب نہیں رہوں گی، میں جا رہی ہوں یہاں سے، ڈرتے ڈرتے میں نے جواب دیا اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہو گئی۔ تم یہ تو بتا دو کہ تمہارے رونے کی کیا وجہ ہے؟ تم بہت تکلیف سے رو رہی تھی، تمہاری تکلیف بھری آواز سن کر ہی میں آیا ہوں۔ اب تمہیں بتانا پڑے گا کہ تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ میرے سامنے دیوار بن کر کھڑے ہوتے ہوئے اس نوجوان نے کہا۔ مجھے نہ جانے کیوں اس سے ڈر لگ رہا تھا۔ میں بہت مجبور اور غریب لڑکی ہوں، بھیک مانگ کر گزارا کرتی ہوں۔ میری 2 چھوٹی بہنیں اور ایک معذور باپ ہے۔ سردی کی وجہ سے میں نے اپنی بہنوں کو گھر سے باہر نکلنے نہ دیا تھا کیونکہ وہ پہلے ہی بہت بیمار ہو گئی تھی، لیکن میں کب سے ادھر ادھر گھوم رہی تھی۔ کسی نے مجھ پر رحم نہیں کیا اور نہ ہی کوئی میری مدد کی ہے۔ اب مجھے گھر جاتے ہوئے بہت شرمندگی ہو رہی ہے۔ سمجھ نہیں آتی کہ اپنی بھوکی بہنوں اور مجبور باپ کا چہرہ کیسے دیکھوں گی۔ وہ سب میرا انتظار کر رہے ہوں گے کہ میں ان کے کھانے کے لیے کچھ لے کر آؤں گی۔ اپنے آنسوؤں پر قابو پاتے ہوئے میں نے جواب دیا، بس اتنی سی بات ہے، اس بات کے لیے تم رو رہی ہو؟ ارے پگلی، تم اس وقت رو رہی تھی تو مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ یہ کہتے ہوئے اچانک ہی وہ نوجوان زمین کی طرف جھکا اور ایک سامان سے بھرا ہوا تھیلا اٹھا کر میری طرف بڑھا دیا۔ یہ سب سامان اٹھا کر تم لے جاؤ، اس میں کھانے پینے کی بہت سی اشیاء موجود ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اب 2-3 دن تک تمہیں کوئی پریشانی نہ ہوگی۔
तुम इससे ज़्यादा सामान उठा ना सकोगी, वरना मैं तुम्हें ज़्यादा सामान दे देता। लेकिन खैर, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब जल्दी से अपने घर जाओ, इसमें से सामान निकाल कर अपने घर वालों को दो। बेतकल्लुफ़ अंदाज में वो नौजवान बोल रहा था। मैं हैरान नज़रों से कभी उस नौजवान को और कभी उसके हाथ में पकड़े हुए थैले को देख रही थी। मैंने तो सोचा भी ना था कि कोई मेरी इस तरह से मदद कर देगा। मुझे हैरान नज़रों से अपनी तरफ देखते हुए वो नौजवान मुस्कुराने लगा। तुम ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? इसमें बहुत मज़े मज़े के खाने पड़े हुए हैं, जल्दी से अपने घर ले जाओ, वरना ठंडे हो गए तो बेकार हो जाएंगे। मुस्कुराती हुई निगाहों से मेरी तरफ देखते हुए उस नौजवान ने कहा। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि जिस मसले के लिए मैं इस कदर परेशान थी, आपने फौरन ही वो मसला हल कर दिया। उस नौजवान के हाथ से थैला पकड़ते हुए मैंने एहसान मंदाना लहजे से कहा, ज्यादा बातें बनाने की और एहसान मंद होने की जरूरत नहीं है। अब तुम अपने घर जाओ और छोटी छोटी बातों पर रोने मत बैठ जाया करो। उस शख्स ने मुझे मुस्कुराते हुए देखा और फिर समझाने के अंदाज में कहा। मैं उसका शुक्रिया अदा करके तेज तेज कदम उठाती हुई वापसी के रास्ते पर चलने लगी। मेरा जी चाह रहा था कि मेरे साथ पर लग जाए और मैं उड़ती हुई अपने घर पहुंच जाऊं, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से एहसास था कि मेरी बहनें इस वक्त भूख की शिद्दत से बहुत तकलीफ में होंगी। मैं बहुत तेजी से चल रही थी। तेज तेज चलने की वजह से मेरा सांस फूलने लगा था, लेकिन मैंने अपनी रफ्तार फिर भी कम न की थी, क्योंकि मैं जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहती थी। अभी मैं गलियों से बाहर ही निकली थी कि मुझे अपनी झोंपड़ी सामने दिखाई देने लगी। मैं आंखें मल मल कर देखने लगी कि हमारी बस्ती यहाँ कहाँ पर आ गई, लेकिन अपने इर्द गिर्द देखकर तो मेरी हैरत की इंतहा न रही, क्योंकि मैं अपनी बस्ती में खड़ी थी। बाजार में और हमारी बस्ती के दरमियान में अच्छा खासा फासला था। वो फासला मैंने कैसे तय कर लिया था, मुझे कुछ समझ ना आ रही थी। मैं बहुत तेज तेज चल रही थी। मुझे अपने आसपास की भी कोई खबर न थी, इसलिए शायद मुझे अंदाजा ही नहीं हुआ और मैं तेज तेज चलते हुए अपनी बस्ती तक आ गई। इधर उधर देखते हुए मैंने खुद को तसल्ली देने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन मुझे अब भी अपनी आंखों पर यकीन ना रहा था। कंधे उचकाते हुए मैं आगे बढ़ गई और अपनी झोंपड़ी के कपड़े नुमा दरवाजे से अंदर दाखिल हुई। झोंपड़ी के अंदर हल्की रोशनी थी, क्योंकि लालटेन जल रही थी। अरे शुक्र है तुम आ गई हो। हम तो परेशान हो गई थी कि अब तो रात होने वाली है, तुम पता नहीं कहाँ चली गई हो। सकीना ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। मैं बहुत परेशान थी, इसलिए देर हो गई। आज सर्दी बहुत ज्यादा थी और धुंध की वजह से कारोबार भी ना होने के बराबर था, इसलिए जिसके सामने भी हाथ फैलाती लोग धुतकार देते थे। बहुत मुश्किल से ये खाने पीने का सामान हाथ लगा है, अब जल्दी से इसे खा लो। अब्बा को भी खाने के लिए दो और खुद भी खाओ। मुझे भी बहुत भूख लग रही है, मुझे भी दे दो। तफसील से सकीना को मैंने बताया और अब्बा के साथ ही चारपाई पर बैठ गई। मुझे देखकर अब्बा भी उठकर बैठ गए थे। सकीना ने सामान से भरा हुआ थैला खोला तो खुशी से चीख उठी। बहुत मजे मजे के खाने पड़े हुए थे और हम सबको निकाल कर देने लगी। नीलम भी बहुत खुश हो रही थी। हम सब मिलकर खाना खाने लगे। मैं दिल ही दिल में उस अजनबी नौजवान को दुआएं दे रही थी, जिसने उस मुश्किल वक्त में भी मेरी मदद की थी। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि आज रात हमें भूखा ही सोना पड़ेगा, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र था कि उसने कोई ना कोई इंतजाम कर ही दिया था। हम कच्ची बस्ती में रहने वाले लोग बहुत मुश्किल से जिंदगी गुजार रहे होते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा मुश्किल जिंदगी हमारी है, क्योंकि अब्बा माजूर होकर चारपाई पर पड़ गए थे और अम्मा इलाज ना होने की वजह से बीमारियों से लड़ते लड़ते आखिर जान की बाजी हार गई थी। दो छोटी बहनों और माजूर वालिद की जिम्मेदारी पूरी करना आसान न था, लेकिन मैंने इरादा कर लिया था कि मैं इन जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से पूरा करने की कोशिश करूंगी। नीलम और सकीना भी बस्ती की बाकी लड़कियों की तरह भीख मांगने जाती थी, लेकिन दोनों ही बीमार हो गई थी, जिसकी वजह से उनका इलाज करवाना पड़ा और जो चंद पैसे मुश्किल वक्त के लिए रखे हुए थे वो भी खर्च हो गए। इसलिए मैंने उन्हें सर्दी के मौसम में झोंपड़ी से बाहर निकलने से मना कर दिया था, ताकि वो दोबारा बीमार होकर मेरे लिए मजीद परेशानियां मत पैदा करें। मैंने पेट भरकर खाना खाया और बाकी खाना मैंने संभाल दिया था। आज तो बहुत मजे का खाना था। बहुत अरसे के बाद इतना मजेदार खाना खाया है। खाना खाने के बाद नीलम ने खुश होते हुए कहा, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि वो हमें खाना अता करता है। ना सिर्फ खाना बल्कि हमारी हर जरूरत का भी ख्याल रखता है। नीलम की तरफ देखकर मैंने मुस्कुराते हुए कहा, रोज बरोज सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा था।
आज भी बाजार में कारोबार बहुत मंदा जा रहा था, क्योंकि ग्राहक तो घर से बाहर ही ना निकल रहे थे। ठंड की वजह से बहुत से लोग बीमार भी हो रहे थे, इसलिए लोग अचद जरूरत के तहत ही घर से बाहर निकलते थे। ऐसे वक्त में हम जैसे लोगों के लिए बहुत मसाइल पैदा हो गए थे। भीख मांगने के लिए कोई शख्स दिखाई ही ना देता था। अगर कोई शख्स नजर भी आ जाता तो लोग धुतकार देते थे। उस वक्त हर शख्स मजबूर ही दिखाई दे रहा था। शाम तक बहुत मामूली सी रकम मेरे हाथ आई थी, जिससे मैंने खाने पीने की चंद अशिया खरीदी और घर चली गई। अल्लाह का शुक्र था कि इस अजनबी नौजवान ने जो खाने पीने की अशिया दी थी उनमें से कुछ बची हुई थी। अब्बा नीलम और सकीना ने दिन को वही खा ली थी और अब रात के खाने के नाम पर 3 बंदे थे, जिन्हें बराबर हिस्सों में तकसीम करके हमने खाना खा लिया था। सुबह नाश्ते में एक बार फिर वही कहवा पीकर मैं घर से बाहर निकल आई। सकीना और नीलम को मैंने सख्ती से मना कर दिया था कि झोपड़ी से बाहर मत निकलना और अब्बा का ख्याल रखना। आज फिर बाजार में घूमते हुए शाम होने लगी थी, लेकिन भीख के नाम पर किसी ने फूटी कौड़ी भी न दी थी। मैं बहुत परेशान हो चुकी थी कि आज शाम के खाने और सुबह के नाश्ते का कैसे इंतजाम करूंगी। बार बार अपने बेबस और मजबूर बाप के साथ साथ छोटी बहनों के चेहरे निगाहों के सामने आ रहे थे और सब तो इसी इंतजार में बैठे हुए थे कि मैं खाना लेकर आ रही हूं। लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि आज मुझे खाली हाथ ही वापस जाना पड़ेगा। अचानक ही मेरे जहन में वही खूबरू नौजवान आ गया जिसने चंद दिन पहले मेरी मदद की थी। मैं दोबारा इससे मिलना चाहती थी ताकि वो मेरी कुछ मदद कर दे। इस भरी दुनिया में उसके अलावा मुझे कोई और शख्स दिखाई न दे रहा था जो हमें रात का खाना खिला सकता। अब मैं उन्हीं गलियों में तेज तेज कदमों से चल रही थी जिनमें चंद दिन पहले चलते हुए मैं उस नौजवान के दरवाजे के सामने पहुंच गई थी। जब मैं उस नौजवान की गली में दाखिल हुई तो ये देखकर हैरान रह गई कि यहाँ पर आसपास बहुत बड़े बड़े मकानात बने हुए हैं, लेकिन एक दूसरे से बहुत फासले पर है। उस रोज तो अंधेरा छा जाने की वजह से मुझे सही दिखाई न दिया था, लेकिन आज चूंकि अभी शाम होने में कुछ वक्त बाकी था, इसलिए मुझे कोई फिक्र न थी। पुरसुकून अंदाज से हर इमारत को देख रही थी। बहुत बड़ी बड़ी इमारतें थीं। मुझे उन इमारतों से क्या लेना देना था। हमारे नसीब में तो सिर्फ टूटी फूटी झोंपड़ियां ही होती हैं। एक बड़े से घर के सामने खड़े होकर हसरत भरी निगाहों से गेट की तरफ देखते हुए मैंने कहा। अपने ख्यालों में मगन मैं उस नौजवान के दरवाजे पर आकर रुक गई। यह भी एक बहुत खूबसूरत मेन दरवाजा था। मैं अभी सोच ही रही थी कि बेल बजा दूं और दरवाजे पर आने वाले शख्स से उस खूबरू नौजवान के बारे में पूछूं। उस लम्हे मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैं तो उस नौजवान का नाम तक न जानती थी। अगर किसी से पूछूंगी तो क्या पूछूंगी। मुझे अपनी हिमाकत पर गुस्सा आने लगा था। अपने गुस्से को काबू करते हुए मैंने दरवाजा खटखटा दिया। मैं किस्मत आजमाना चाहती थी, इसलिए पलटकर जाने के बजाय इंतजार करने लगी कि दरवाजे पर कौन आएगा। उस वक्त तो मेरी हैरत की इंतहा ही न रही और मैं खुशी से चीखने लगी, क्योंकि दरवाजे पर कोई और नहीं, वही खूबसूरत नौजवान खड़ा था। मेरे चेहरे की तरफ देखकर वो नौजवान मुस्कुराने लगा। अच्छा हुआ तुम मिल गए हो। मैं तुम्हारा नाम तक न जानती थी। अपनी कैफियत पर काबू पाते हुए मैंने खुशी से चहकते हुए कहा, मेरे मिल जाने पर तुम इतनी खुश हो रही हो, क्या तुम मुझसे मिलना चाहती थी? उस शख्स ने मेरी तरफ देखकर हैरान होते हुए पूछा। शायद उसे यकीन ना रहा था कि मैं उसे देखकर इस कदर खुश हुई हूं। तुम बिल्कुल ठीक समझे हो। मैं तुम्हारे मिल जाने पर बहुत खुश हो रही हूं, क्योंकि तुमने पिछली बार मेरी मदद की थी और हम भूखे सोने से बच गए थे। आज फिर मैं तुम्हारे पास मदद मांगने के लिए ही आई हूं, क्योंकि मैं खाली हाथ घर वापस नहीं जाना चाहती। मेरी बहनें और बाप इंतजार कर रहे होंगे। संजीदा अंदाज से मैंने कहा। न जाने क्यों उसके सामने मुझे कुछ मांगते हुए शर्मिंदगी हो रही थी। मैंने सर झुका लिया। तुमने अच्छा किया कि मेरे दरवाजे पर आ गई। अब तुम यहां पर ही रुको, मैं अंदर से कुछ सामान लेकर आता हूं। मेरी शर्मिंदगी को नजरअंदाज करते हुए उसने कहा, और फिर मैंने झुके हुए सर के साथ उसको वापस पलटते हुए देखा। सर झुका हुआ होने की वजह से मुझे उसके पांव दिखाई दे रहे थे। इंतहाई सुर्ख और सफेद पांव पर काले रंग का जूता बहुत खूबसूरत लग रहा था। मैं उसके पांव की तरफ गौर से देखने लगी, लेकिन मुझे बहुत अजीब दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसके पांव जमीन पर नहीं बल्कि जमीन से कुछ ऊपर हवा में चल रहे हैं। जल्दी से सर उठाकर देखा तो दूर तक कोई दिखाई न दे रहा था। मैं गेट से बाहर खड़ी थी और खुले हुए दरवाजे से घर का बहुत सा कम हिस्सा दिखाई दे रहा था।
चंद लम्हों बाद उसकी वापसी हुई। आज तो उसने बहुत ज्यादा सामान उठाया हुआ था। तुम ये सब ले जाओ, और अब तुम्हें भीख मांगने की हरगिज जरूरत नहीं है। जब भी तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो मेरे दरवाजे पर आ जाया करो, तुम्हें तुम्हारी जरूरत के मुताबिक हर चीज मिल जाया करेगी। सामान मेरे कदमों के पास ढेर लगाते हुए उसने कहा, मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूं। एक ऐसे वक्त में जब हर शख्स मजबूर और हालात में फंसा हुआ दिखाई देता है, तुमने ना सिर्फ मेरी मदद की है बल्कि हमेशा मेरी मदद के लिए तैयार हो। मैं किस तरह से तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? गुलगीर लहजे से मैंने कहा, तुम्हें रोने या परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी जो मदद कर सकता हूं वो जरूर करूंगा, इसलिए अब तुम परेशान मत होना। यह सामान उठाकर जाना तो तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, इसलिए किसी रिक्शे वगैरह में बैठ जाना। कुछ पैसे मेरी तरफ बढ़ाते हुए उस शख्स ने कहा। वो रिक्शे का किराया भी अदा करना चाह रहा था। जब मैंने सामान की तरफ देखा तो सामान इतना ज्यादा था कि मैं उठा ना सकती थी, इसलिए उसकी बात मुझे मुनासिब ही लगी। हाथ बढ़ाकर मैंने उसके हाथ से पैसे पकड़ लिए। शाबाश, अच्छी लड़की हो, तुम अब ये सामान उठाकर जाओ। शाम हो रही है, जल्द ही अंधेरा फैल जाएगा, तुम्हें वक्त पर अपने घर पहुंच जाना चाहिए। मैंने उनके हाथ से पैसे लिए तो वो मुस्कुराते हुए कहने लगा। सर पर रखी हुई चादर के कोने में मैंने पैसे बांधे और झुककर सामान उठाने लगी। नीचे झुकने की वजह से मेरे सर की चादर ढलक कर कंधे पर आ गई। वो नौजवान मेरी तरफ गौर से देख रहा था। न जाने उस लम्हे मुझे उसकी आंखों में ऐसा क्या दिखाई दिया कि मैं खौफजदा हो गई। जल्दी से अपनी चादर खोलकर खुद को छुपाने लगी, लेकिन फटी हुई चादर मुझे छुपाने में नाकाम थी। कुछ कहे बगैर वो नौजवान मुझे हवस भरी नजरों से देखने लगा। मुझे यकीन ना आ रहा था कि जिस शख्स को मैं एक नेक और अच्छा इंसान समझ रही थी वो तो कोई मतलब परस्त इंसान था। 2 कदम आगे बढ़कर और बिल्कुल मेरे करीब आकर खड़ा हो गया। घबराकर मैं चंद कदम पीछे हट गई। मेरा जी चाह रहा था कि यहां से भागकर चली जाऊं, लेकिन मैं खाली हाथ न जाना चाहती थी। अब कुछ समझ ना आ रहा था कि मैं क्या करूं। अभी तक वो नौजवान मुझ पर नजरें गाड़े खड़ा था। ऐसा लग रहा था कि उसे इर्द गिर्द की कोई खबर नहीं है, और मुझे ये अंदेशा भी था कि कोई शख्स अगर घर से बाहर निकल आया या गली में से गुजरते हुए किसी ने मुझे देख लिया तो ना जाने क्या बातें बन जाएंगी। लेकिन उसे तो कोई परवाह न थी। तुम ऐसे क्या देख रहे हो? कुछ पीछे हट जाओ ताकि मैं ये सामान उठा लूं। खुद को अपनी फटी हुई चादर में छुपाने की नाकाम कोशिश करते हुए मैंने कहा, तुम बहुत खूबसूरत हो, लेकिन तुम अपना ख्याल नहीं रखती। अगर तुम अपना ख्याल रखो, साफ सुथरे कपड़े पहनो, तो तुम्हारे जैसी हसीन लड़की इस पूरे शहर में कहीं नहीं होने लगी। खोए खोए लहजे में उसने जवाब दिया। अब भी वो अपनी नजरों में मुझे ही तोल रहा था। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मुझे ऐसी वैसी लड़की मत समझ लेना। अगर तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो यहां से पीछे हट जाओ, घर के अंदर वापस चले जाओ। मैं ये सामान उठाकर चली जाऊंगी, वरना मुझे भूखा रहना कबूल है। ये सामान ना लेकर जाऊंगी और दोबारा कभी तुम्हारे दरवाजे पर ना आऊंगी। करख्त लहजे से मैंने कहा। मैंने तो तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी ना देखा था, लेकिन तुम्हारे हसीन चेहरे और इस खूबसूरत गर्दन को देखकर मैं खुद पर इख्तियार खो बैठा हूं। अपनी मुजरिमाना ज़हनियत मुझ पर जाहिर करते हुए उसने कहा, और चंद कदम आगे बढ़कर मेरा हाथ थाम लिया। उसका हाथ मुझे कांटेदार महसूस हुआ था। जल्दी से मैंने अपना हाथ छुड़वाया और उल्टे कदमों वापस भागी। मैं पीछे मुड़कर भी देखना ना चाहती थी। मुझे उस नौजवान से बहुत खौफ महसूस हो रहा था। मैंने सोच लिया था कि आज उसका नाम पूछूंगी और उसके बारे में पूरी मालूमात हासिल करूंगी, लेकिन मुझे तो अजीब ही सूरत हाल का सामना करना पड़ गया था जिसका मैंने कभी तसव्वुर भी न किया था। तेज तेज कदमों से दौड़ते हुए मैं अपने घर की तरफ जा रही थी। आंसू मेरी आंखों से जारी थे। एक तरफ तो मुझे उस नौजवान का घिनौना चेहरा दिखाई दिया था जिसके सामने आ जाने पर मैं बहुत दुखी हुई थी, और दूसरी तरफ मुझे अपनी मजबूर बाप और बेबस बहनों का एहसास भी था। मेरे साथ साथ आज उन्हें भी रात को भूखा सोना पड़ेगा। ये सब कुछ सोचते हुए मेरी हालत बहुत खराब हो रही थी। जी चाह रहा था कि घर में जाने के बजाय यहाँ ही किसी ऊंची सी बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे दूं। तरह तरह के मनफी ख्यालात जहन में आ रहे थे। जब मैं अपनी बस्ती में दाखिल हुई तो अंधेरा छाने लगा था। झोंपड़ियों से उठता हुआ धुआं और खानों की खुशबू से मेरी भूख तो मजीद बढ़ गई थी, लेकिन मैंने अपनी उस ख्वाहिश को काबू में रखा, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानती थी कि आज रात खाली पेट ही सोना पड़ेगा। खुद पर काबू पाते हुए मैं अपनी झोंपड़ी के सामने आकर रुक गई। मुझ में हिम्मत ना हो रही थी कि मैं झोंपड़ी के अंदर दाखिल हूं। मैं जानती थी कि मुझे खाली हाथ झोंपड़ी में दाखिल होते देखकर अब्बा के साथ साथ नीलम और सकीना भी परेशान हो जाएंगी।
ہمت جمع کرتے ہوئے جب میں جھونپڑی کے دروازے سے اندر داخل ہوئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ابا کھانا کھا رہے تھے، جبکہ دوسری چارپائی پر نیلم اور سکینہ بھی بیٹھی ہوئی تھی اور کھانا کھانے میں مصروف تھی۔ میں نے جھونپڑی میں نگاہ دوڑائی تو حیرت زدہ رہ گئی، کیونکہ وہی سامان جو مجھے اس نوجوان نے دیا تھا جھونپڑی کے ایک کونے میں پڑا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے اس سامان کو پہچان لیا تھا، کیونکہ سب سامان سرخ رنگ کے تھیلوں میں بند تھا۔ تم کہاں رہ گئی تھی؟ ہم کب سے تمہارا انتظار کر رہے تھے۔ اب تو ہم سے بھوک برداشت نہ ہو رہی تھی، اس لیے ہم نے کھانا شروع کر دیا۔ ابا نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ آج وہ بہت خوش دکھائی دے رہے تھے۔ آپ تو جانتے ہیں نا کہ اس قدر شدید ٹھنڈ ہے کہ لوگ گھروں سے باہر نہیں نکلتے۔ ایسے موسم میں بھی کچھ بھی ملنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے مجھے دیر ہو گئی۔ میں نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ اچھا باتیں کرنا چھوڑ دو اور جلدی سے ہمارے ساتھ آؤ اور یہ گرم گرم کھانا کھا لو، ہم آپ ہی کا انتظار کر رہی تھی۔ نیلم نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا اور بہت رغبت سے کھانا کھا رہی تھی۔ جب میں نے غور کیا تو ان کی پلیٹوں میں بہت مزیدار کھانا رکھا ہوا تھا۔ یہ سب کھانا اور یہ سامان کہاں سے آیا ہے؟ کھانے اور سامان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے میں نے پوچھا۔ تھوڑی دیر پہلے ایک خوبصورت نوجوان لڑکا آیا جس نے یہ سارا سامان ہمیں دیا اور کہہ رہا تھا کہ آپ کو سامان دیا تھا لیکن آپ اتنا زیادہ سامان اٹھا کر نہ لا سکتی تھی، اس لیے وہ خود ہی یہ سامان چھوڑنے کے لیے آ گیا تھا، نیلم نے جواب دیا۔ اس کا جواب سن کر میں پریشان ہو گئی تھی، کیونکہ میں یہ نہ جانتی تھی کہ وہ نوجوان میرے بارے میں جانتا ہے اور اسے اس بات کا علم ہے کہ میں کہاں پر رہتی ہوں۔ یہ میرے لیے بہت پریشان کن بات تھی۔ وہ میرا پیچھا کرتے ہوئے یہاں تک آ سکتا تھا۔ میری تو بھوک ہی اٹھ گئی تھی، لیکن میں کسی کو بھی پریشان نہ کرنا چاہتی تھی، اس لیے نیلم کے ساتھ بیٹھ کر خاموشی سے کھانا کھانے لگی۔ بہت مزے کا کھانا ہے، کھانا کھا کر دیکھوں گی تو پتہ چلے گا، سکینہ نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے یہ خوشی ہو رہی تھی کہ آج میرے گھر والوں کو بھوکا نہیں سونا پڑے گا، لیکن بہت پریشانی بھی ہو رہی تھی کہ نہ جانے وہ نوجوان مجھے اب کتنا تنگ کرے گا اور میں کیسے اس سے جان چھڑواؤں گی۔ رات کو سونے کے لیے بستر پر لیٹ کر بھی مجھے وہی نوجوان یاد آ رہا تھا۔ اس کی ہوس بھری نظریں مجھے اپنے جسم سے آر پار ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے یہ فکر تو نہ تھی کہ کل دن کو بھیک مانگ کر ہی رات کو کھانا لے کر آؤں گی، لیکن جو سامان اس نوجوان نے دیا تھا وہ 10 دن کے لیے بہت تھا۔ کم سے کم میں 10 دن کے لیے فکر مند نہ تھی۔ کروٹیں بدلتے بدلتے نہ جانے کس وقت سو گئی۔ اچانک ہی مجھے اپنے قریب کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میں نے جلدی سے آنکھیں کھول کر دیکھا تو حیرت زدہ رہ گئی، کیونکہ ایک سفید رنگ کا کبوتر میری چارپائی پر بیٹھا ہوا تھا اور وہ اندھیرے میں بھی چمکتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی ایک خاص بات تھی جو اسے تمام کبوتروں سے الگ کر رہی تھی، اور وہ تھی اس کی جسامت۔ وہ دیکھنے میں عام کبوتروں کے سائز سے بہت بڑا لگ رہا تھا۔ مجھے حیرت ہوئی تھی کہ رات کے اس پہر کبوتر کہاں سے آ گیا۔ شاید بلی اس کبوتر کے پیچھے لگی ہوگی اور وہ جان بچاتے ہوئے ہماری جھونپڑی میں آ گیا ہوگا۔ کبوتر کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے سوچا، مجھے اس کمزور مخلوق پر بہت ترس آیا۔ ہماری بستی کے بہت سے نوجوان لڑکوں نے کبوتر پالے ہوئے تھے اور اکثر یہ شکایت کرتے دکھائی دیتے تھے کہ بلیاں موقع ملتے ہی ان کے قیمتی کبوتروں کو کھا جاتی ہیں یا مار دیتی ہیں۔ اس لیے میرے ذہن میں بھی یہی خیال آیا تھا کہ کبوتر بلی سے جان بچاتا ہوا یہاں تک آ گیا ہے۔ تمہیں ڈرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، میں یہاں پر موجود ہوں۔ اگر تمہارا پیچھا کرتے ہوئے بلی یہاں تک آ گئی تو میں اس کو مزہ چکھا دوں گی، وہ دوبارہ کبھی تمہارا پیچھا نہیں کرے گی۔ انتہائی دھیمے لہجے سے میں نے کبوتر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس وقت میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب وہ کبوتر اس سر جھکانے لگا اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہ خود کو چھپانا چاہ رہا ہے۔ میں نے اپنی چادر اس پر ڈال دی اور اسے اپنے پاؤں کی طرف بٹھا دیا۔ اب تم آرام سے بیٹھ جاؤ، وہ بلی یہاں پر نہیں آئے گی، کبوتر کو تسلی دیتے ہوئے میں نے کہا۔ وہ دبک کر بیٹھ گیا۔ مجھے اس کمزور سے جانور پر بہت ترس آ رہا تھا۔ اپنی زندگی بچانے کے لیے بیچارے کو نہ جانے کتنی تکلیف اٹھانی پڑی ہوگی۔ اب میں مطمئن ہو گئی تھی کہ کبوتر محفوظ ہے۔ بلی میری چارپائی پر آ کر اس پر حملہ نہیں کرنے لگی۔ ایک بار پھر میں نیند کی وادیوں میں اتر چکی تھی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو ابھی تک باقی سب سو رہے تھے۔ ذہن کے بیدار ہوتے ہی مجھے کبوتر کا خیال آیا۔ میں جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی اور کبوتر کو دیکھنے لگی، لیکن جس جگہ میں نے کبوتر کو بٹھایا تھا وہاں پر اب صرف میری چادر ہی پڑی ہوئی تھی۔ وہ کبوتر تو نہ جانے کب سے جا چکا تھا۔ مجھے بہت دکھ ہوا کہ میں صبح کی روشنی میں کبوتر کو اچھی طرح سے دیکھ لیتی، وہ زخمی بھی ہو سکتا تھا۔ میں جلدی سے بستر سے نیچے اتری، نیلم اور سکینہ کو بھی جگا دیا۔ آج موسم کچھ بہتر تھا،
बहुत दिनों से छाई हुई धुंध आज न थी, सूरज दिखाई देने लगा था। आज मौसम कुछ बेहतर था, इसलिए जल्द ही घर से निकल आई। नीलम और सकीना, मैंने सख्ती से मना कर दिया था कि वो घर पर ही रुकेंगी और अब्बा का ख्याल भी रखेंगी। धूप में भी ठंडी हवा की वजह से सर्दी महसूस हो रही थी, इसलिए मैं चाहती थी कि मेरी दोनों बहनें घर पर आराम करें। अपने ख्यालों में मगन शहर जाने वाले रास्ते पर तेज तेज कदमों से चल रही थी। अभी अचानक ही मुझे एक कबूतर दिखाई दिया, एक छोटे से पत्थर पर बैठा हुआ सफेद रंग का कबूतर। मुझे कुछ जाना पहचाना लग रहा था। मेरे जहन में जल्दी से वो रात वाला कबूतर आ गया। ना जाने मुझे क्यों ऐसा लग रहा था कि ये वही कबूतर है, क्योंकि ये कबूतर भी जिसामत में काफी बड़ा था। इसका साइज आम कबूतर के साइज से बड़ा मालूम हो रहा था, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा था कि वही कबूतर है जो रात को हमारी झोंपड़ी में पनाह लेने के लिए आ गया था। मैं उसके करीब जाकर रुक गई और उसकी तरफ देखने लगी। अपने करीब किसी की मौजूदगी का एहसास करके वो फड़फड़ाने लगा। उसका सर अभी भी जमीन की तरफ झुका हुआ था। मैं हाथ बढ़ाकर उसे उठाने लगी तो वो लहराता हुआ जमीन पर गिर गया। उसकी आंखें बंद और जिस्म बिल्कुल साकत हो चुका था। अरे मेरे खुदा, ये तो मर गया है। जमीन पर उसके करीब बैठते हुए मैंने कहा। मैं झुककर उसे देख रही थी। वो बिल्कुल बेहिस हरकत पड़ा हुआ था, शायद बीमार था, इस वजह से मर गया है। मुझे बहुत अफसोस हो रहा था। मैं ऐसे वक्त पर उसके पास पहुंची थी जब उसका आखिरी वक्त करीब आ चुका था। मैं हाथ बढ़ाकर उसे देखने लगी कि वो सच में मर गया है या अभी उसमें कुछ सांसें बाकी हैं। अचानक ही वो हरकत करने लगा, तेजी से उठा और उड़कर मेरी निगाहों से गायब हो गया। ये सब कुछ चंद सेकंड्स में रूनुमा हुआ था और मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ना रहा था। ये अजीब व गरीब और खौफनाक मंजर देखकर मैं घबरा गई थी। मेरी निगाहों में बार बार उस कबूतर की जिसामत दिखाई देने लगी थी। वो आम कबूतर की निस्बत बड़ा कबूतर था जो उसे दूसरे कबूतरों से मुमताज करता था। शायद ये किसी नायाब नस्ल का कबूतर है, इसके बारे में मैं नहीं जानती। अपने रास्ते पर चलते हुए मैंने सोचा, मैं अभी तक उसी कबूतर के बारे में सोच रही थी। बाजार में आज रौनक थी क्योंकि आज मौसम कुछ बेहतर था। सर्दी तो उरूज पर थी, लेकिन सूरज निकलने की वजह से कारोबार जिंदगी रमा दमा थी। इधर उधर घूमते हुए लोगों के सामने हाथ फैलाती रही। एक दुकान के थड़े पर खड़ी दुकानदार से अल्लाह के नाम पर कुछ मांग रही थी जब अचानक ही दुकान के दरवाजे के करीब आकर एक कबूतर बैठ गया। कबूतर को देखकर मैं बहुत ज्यादा खौफजदा हो गई थी और घबराकर चंद कदम पीछे हट गई, क्योंकि यह वही कबूतर था जो मुझे रास्ते में मिला था। दुकानदार भी हैरान नजरों से कबूतर को देख रहा था। ये इतना बड़ा कबूतर तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। ना जाने ये कबूतर है या कोई और चीज। कबूतर की तरफ देखते हुए दुकानदार ने हैरत भरे लहजे से कहा। दुकानदार कबूतर को अपनी दुकान के सामने से उड़ाना चाहता था, इसलिए हाथ के इशारे से उससे उड़ाने लगा। कबूतर तेजी से उड़ा और निगाहों से ओझल हो गया। मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। ना जाने मुझे क्यों ऐसा महसूस हो रहा था कि ये कबूतर मेरे पीछे यहां तक आ गया है। अभी दोपहर का वक्त था, लेकिन मैंने घर वापस जाने के बारे में सोच लिया था। मुझे बहुत ज्यादा खौफ महसूस हो रहा था, इसलिए मैंने वापसी की राह ली। अभी मैं अपनी बस्ती से कुछ फासले पर थी कि मुझे वही खूबसूरत नौजवान दिखाई दिया जिसने मेरी मदद की थी और हमें खाने के लिए बहुत सा सामान दिया था। वो उसी पत्थर पर बैठा हुआ था जिस पर मैंने उस अजीब व गरीब कबूतर को बैठे हुए देखा था। उस नौजवान को देखकर मुझे अच्छा न लगा था, क्योंकि वो जिन निगाहों से मुझे देख रहा था वो मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। इसलिए उसको अपने रास्ते में मौजूद पाकर मैं घबरा गई थी। उसे नजरअंदाज करते हुए मैं करीब से गुजरने लगी, लेकिन वो जल्दी से उठकर खड़ा हुआ और मेरे रास्ते में आ गया। अब वो मेरे सामने ऐसे खड़ा था कि मेरा रास्ता बंद हो गया था। अब तुम्हें मेरी मदद की जरूरत नहीं है। उस दिन के बाद तुम मेरे पास आई ही नहीं। मैं तुम्हारा इंतजार करता रहा। मेरे चेहरे की तरफ देखते हुए उस नौजवान ने कहा, अब मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने मुश्किल वक्त में मेरी मदद की थी। उसके पूछने पर मैंने जल्दी से जवाब दिया, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम इस गुर्बत से अपनी जान छुड़वा लो। ये झोंपड़ी तुम्हारे रहने के काबिल नहीं है। मैं तुम्हें बहुत अच्छा सा घर लेकर देना चाहता हूँ। मेरे चेहरे पर निगाहें जमाए उसने जज्बाती अंदाज से कहा, मेरी झोंपड़ी मेरे लिए जन्नत से कम नहीं है। वहां मेरी बहनों के साथ साथ मेरा बाप भी मौजूद है। मुझे दुनिया में उनसे ज्यादा अजीज कोई नहीं है, इसलिए मैं अपनी इस झोंपड़ी को नहीं छोड़ सकती। मेरी ये टूटी फूटी झोंपड़ी मुझे जान से भी ज्यादा प्यारी है। तुम मुझे लालच देने की कोशिश मत करो। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन लालची नहीं। बेहतर यही है कि तुम यहाँ से वापस लौट जाओ और दोबारा कभी मेरे रास्ते में मत आना। तुम मेरे मोहसिन हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं कहना चाहती।
उसकी पेशकश सुनकर मैंने गुस्सीले लहजे से जवाब दिया। मैं अपने रवैये के जरिए उसे ये बता देना चाहती थी कि मेरी जिंदगी में उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। वो बिलाशुबा एक खूबसूरत नौजवान था, लेकिन मुझे वो बिल्कुल भी पसंद ना आया था। सर से पैर तक वो मुझे घूरने में मसरूफ था। उसके करीब से गुजरते हुए मैं आगे बढ़ने लगी। मैंने पीछे मुड़कर देखना भी गवारा न किया था। न जाने वो अभी तक उसी जगह पर खड़ा मुझे देख रहा था या चला गया था। जब मैं अपनी झोंपड़ी में पहुंची तो ये देखकर हैरान रह गई। आज फिर घर की जरूरियात का बहुत सा सामान झोंपड़ी के कोने में पड़ा हुआ था। मुझे ये जानने में देर न लगी थी कि आज फिर वही नौजवान हमारे घर सामान देकर गया होगा। अच्छा हुआ अब जल्दी वापस आ गई। अब आपको ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है। एक नेक शख्स जो पहले ही हमारे घर खाने पीने का सामान देकर गया था, आज फिर वही आया था। अब्बा दोस्त से मिलकर बहुत खुश हुए। बहुत अच्छा इंसान है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि आजकल के दौर में भी इतने अच्छे लोग मिल जाते हैं। मुझे देखते ही नीलम ने खुशी से चहकते हुए कहा। लेकिन ना जाने मुझे कोई खुशी ना हुई थी। मुझे शदीद भूख लग रही थी, लेकिन ना जाने मुझे क्यों ऐसा लग रहा था कि उस शख्स का दिया हुआ सामान वापस कर देना चाहिए। मुझे सामान देखकर बेचैन महसूस हो रही थी। नीलम, सकीना और अब्बा तीनों खुश दिखाई दे रहे थे, इसलिए मैंने कुछ भी कहना मुनासिब न समझा और उनके सामने मसनूई खुशी का इजहार करने लगी। शाम के करीब वो नौजवान दोबारा हमारे घर आ गया। अरे यूसुफ बेटा, तुम इस वक्त हमारे घर, खैरियत तो है ना? अब्बा ने उसे देखते ही पूछा। मुझे उसका नाम पता चल गया था। इससे पहले हमारी जितनी भी मुलाकातें हुई, मुझे उसका नाम पूछना क्या थी नहीं रहा। यह यहाँ करीब ही से गुजर रहा था तो मैंने सोचा कि आपसे पूछ लूं, किसी चीज की जरूरत ना हो। चेहरे पर मुस्कुराहट सजाते हुए यूसुफ ने जवाब दिया। तुम हमें क्यों शर्मिंदा करते हो? आज दिन को तो हमारे घर इतना राशन देकर गए थे। अब भला हमें किस चीज की जरूरत होगी? हम तुम्हारे वैसे ही बहुत ज्यादा एहसानमंद हो चुके हैं। हमारे लिए बार बार तकल्लुफ या जहमत मत किया करो। एहसानमंदाना लहजे से अब्बा जान ने कहा। इसमें जहमत देने वाली कोई बात नहीं है। मैं जानता हूं कि आप एक माजूर शख्स हैं और आपके सर पर 3 बेटियों की जिम्मेदारियां हैं। बस यही सोचकर मैं आपका अहवाल पूछने के लिए आ जाता हूं। उसके लहजे में हमारे लिए हमदर्दी ही हमदर्दी थी, जबकि मुझे महसूस हो रहा था कि वो सिर्फ दिखावा कर रहा है। जब तक वो अब्बा के पास मौजूद रहा, मैंने सर उठाकर भी उसकी तरफ ना देखा था। उस वक्त शाम हो रही थी, इसलिए अब्बा को झोंपड़ी के अंदर करना बहुत जरूरी था, क्योंकि बाहर सर्दी बढ़ चुकी थी। मेरे कहने पर सकीना अब्बा को सहारा देकर झोंपड़ी के अंदर ले गई। मैं लकड़ी वाले चूल्हे के पास बैठी हुई थी और उसे नजरअंदाज किए खाना बनाने में मसरूफ थी। सकीना और अब्बा झोंपड़ी के अंदर दाखिल हुए तो मैंने सर उठाकर उसकी तरफ देखा तो हैरत ज़दा रह गई, क्योंकि जिस जगह कुछ देर पहले वो खूबसूरत नौजवान यूसुफ बैठा हुआ था, उस जगह पर अब सफेद रंग का कबूतर दिखाई दे रहा था। ये कबूतर भी कोई आम कबूतर न था, बल्कि साइज में काफी बड़ा और सर झुकाए बैठा हुआ था। अचानक से अपने सामने अजीबो गरीब कबूतर को देखकर मेरा दिल खौफ से कांपने लगा था। मुझे शदीद घबराहट हो रही थी। कुछ समझ ना आ रहा था कि मेरे सामने ये कबूतर अचानक कहाँ से आ गया और वो नौजवान यूसुफ कहाँ चला गया है। फटी फटी आंखों से मैं ये सब मंजर देख रही थी। क्या हुआ है? किसे देख रही हो? तुम मुझे बहुत परेशान दिख रही हो। अचानक ही नीलम की आवाज मुझे सुनाई दी। मैं तो अपने इर्द गिर्द से बेखबर हो चुकी थी। कुछ नहीं, बस वैसे ही इधर उधर देख रही थी। मैंने जल्दी से जवाब दिया और दोबारा हांडी बनाने में मसरूफ हो गई। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि तुम बहुत परेशान हो, बल्कि बहुत ज्यादा घबराई हुई लग रही थी। मेरी बात पर यकीन ना करते हुए नीलम ने कहा, तुम्हें ना जाने क्यों ऐसा महसूस हुआ है। मैं तो बिल्कुल ठीक हूं और घबराहट किस बात की होनी थी। तुम मेरी फिक्र न करो। चेहरे पर जबरदस्ती मुस्कुराहट सजाते हुए मैंने कहा। नीलम अब भी बेयकीन निगाहों से मेरी तरफ देख रही थी। उसे मेरे जवाब पर यकीन ना रहा था। मैंने उसे नजरअंदाज करना ही मुनासिब समझा। अपने बिस्तर पर लेटकर भी मुझे नींद ना आ रही थी। ना जाने क्यों मुझे खौफ महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि कुछ होने वाला है। मेरा जी चाह रहा था कि अब्बा को उस नौजवान के बारे में बता दूं, लेकिन फिर अब्बा की परेशानी के ख्याल से मैंने कुछ भी न बताने का फैसला किया। सुबह मेरी आंख खुली तो मामूल के मुताबिक बाकी सब सो रहे थे, सिर्फ मेरी ही आंख खुली थी। मैं बिस्तर से उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन मैं तो अपने जिस्म को हरकत ही न दे पा रही थी। मेरा पूरा जिस्म शदीद दुख रहा था। मैं तो अजीब मुसीबत में मुब्तला हो गई थी। मेरा सारा जिस्म बेहिस्सो हरकत हो चुका था, यहाँ तक कि मुझे तो कुछ एहसास भी ना हो रहा था। ऐसा लग रहा था मेरे बाजू, टांगे और पाँव मेरे साथ मौजूद ही नहीं है।
इस सूरत-ए-हाल से मैं बहुत परेशान हो गई और घबराए हुए लहजे से नीलम और सकीना को आवाज़ें देने लगी। मेरी आवाज़ें सुनकर वो तीनों जाग आए थे और अब हैरान परेशान नज़रों से मेरी तरफ देख रहे थे। अपनी बेबसी का एहसास करते हुए मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए थे। क्या हुआ है बेटी, तुम क्यों रो रही हो? अब्बा ने फिक्रमंदाना लहजे से पूछा। मैं अपनी जगह से हरकत नहीं कर पा रही। मुझे ऐसा लग रहा है मेरा सारा जिस्म मफलूज हो चुका है। शायद मेरे जिस्म पर फालिज का अटैक हुआ है। अब मैं कभी भी उठकर चल फिर न सकूंगी। मैं माजूर हो गई हूँ, मोहताज हो गई हूँ, इंतहाई मायूसाना लहजे से मैंने कहा। नीलम और सकीना जल्दी से मेरे करीब आ गई। वो सहारा देकर मुझे उठाने की कोशिश करने लगी। उनके सहारे पर मैं उठकर खड़ी तो हो गई, लेकिन अपने वजन पर खड़ी न रह सकी और दोबारा बिस्तर पर गिर गई। ये देखकर वो दोनों भी परेशान हो गई और रोने लगी। अब्बा भी बहुत परेशान थे। अचानक ही हम ना जाने इतनी बड़ी मुसीबत में ना जाने कैसे मुब्तला हो गए थे। अब्बा ने हम तीनों को तसल्ली दी और सब्र करने का कहा। वो भी बहुत परेशान थे, लेकिन कुछ कर ना सकते थे, इसलिए हमें सिर्फ तसल्ली दे रहे थे। मुझे उनकी आंखों में आंसू साफ दिखाई दे रहे थे, लेकिन वो उन्हें जब्त करके बैठे हुए थे। एक जिंदा लाश की तरह मैं चारपाई पर पड़ी हुई थी। नीलम और सकीना मेरे हाथों और पांव का मसाज कर रही थी। अब तुम दोनों जल्दी से नाश्ता बनाओ। तुम जानती हो ना कि अब्बा को सुबह सवेरे नाश्ता करने की आदत है। नीलम और सकीना की तरफ देखने की कोशिश करते हुए मैंने कहा। मैं सिर्फ अपनी आंखों को ही हरकत दे सकती थी। मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं। जब भूख लगेगी फिर बताऊंगा, तब मुझे कुछ खाने के लिए दे देना। बेबसी से सर झुकाते हुए अब्बा ने कहा। कब तक खाए पिए बगैर जिंदा रह सकेंगे? जिंदा रहने के लिए खाना तो पड़ेगा, इसलिए उन दोनों को नाश्ता बनाने से मना न करें। और आप दोनों जाओ, काम करो। अब तुम दोनों को ही सब कुछ करना पड़ेगा, दुखी लहजे से मैंने कहा। मुझे अपनी आंखों से आंसू बहते हुए महसूस हो रहे थे, लेकिन मैं इस कदर मोहताज हो गई थी कि अपने चेहरे से आंसू साफ न कर सकती थी। नीलम और सकीना झोंपड़ी से बाहर निकल गई। अब्बा भी लाठी के सहारे बाहर निकले तो मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। मैं अपनी आवाज को कंट्रोल करते हुए शिद्दत से रोने लगी। मुझे अपनी बेबसी पर बहुत रोना आ रहा था। अचानक ही सफेद रंग का कबूतर न जाने कहां से नमूदार हुआ और अब्बा की चारपाई पर दिखाई देने लगा। उसे देखकर मैं डर गई और ऊंची आवाज से चीखें मारने लगी। मेरी आवाज सुनकर नीलम और सकीना जल्दी से झोंपड़ी में दाखिल हुई। क्या हो गया है, ऐसे क्यों चीख रही हो? नीलम ने मुझसे पूछा। वो देखो कौन है? ये कबूतर है ना? ये कहां से आ जाता है? ये क्यों मेरे पीछे पड़ गया है? मुझे इससे डर लगता है। अब्बा की चारपाई की तरफ देखते हुए मैंने कहा। मैं खौफ से थर थर कांप रही थी। किधर है कबूतर? हमें तो दिखाई नहीं दे रहा। नीलम ने इधर उधर देखते हुए कहा। वो बिल्कुल मेरे सामने खड़ी थी, अभी तो यहाँ पर ही मौजूद था। झोंपड़ी में ही होगा, तुम देखो तो, गौर से देखो, तलाश करो, मिल जाएगा। तेज तेज लहजे से मैंने कहा। मुझे लगता है कि तुमने ख्वाब देखा था। वो कबूतर तुम्हें ख्वाब में नजर आया था, हकीकत में तो नहीं है। हमें तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा। तुम वैसे ही परेशान हो गई हो। यहाँ पर कोई कबूतर नहीं है। अब तो मेरी हालत बहुत अजीब होने लगी थी। रात को सोते हुए भी ऐसा महसूस होता था कि कोई कबूतर आकर मेरे करीब बैठ गया है। दिन के वक्त तो वो कबूतर मुझे अपने इर्द गिर्द दिखाई देता था। मैं तो खौफ के बारे झोंपड़ी से बाहर ही न निकलती थी। ऐसा लगता था कि वो कबूतर कहीं से उड़ता हुआ आ जाएगा और आकर मेरे सामने बैठ जाएगा। मैं उस कबूतर को दोबारा जिंदगी में ना देखना चाहती थी। ना जाने क्यों मैं उससे इस कदर खौफजदा हो गई थी। 3 दिन हो गए थे, मेरी हालत में कोई तब्दीली ना आई थी। नीलम और सकीना मेरा बहुत ख्याल रख रही थी। जंगल की आग की तरह बस्ती में यह बात फैल गई थी कि अब मैं चल फिर नहीं सकती, माजूर हो चुकी हूँ। बस्ती की खातीन मेरी अयादत के लिए आती तो मेरी हालत देखकर हैरान रह जाती। मुझे तो हर तरफ वही कबूतर दिखाई देता था, कभी मेरे करीब होता और कभी मुझसे कुछ फासले पर मौजूद होता। हैरत की बात तो यह थी कि वो मुझे तो कबूतर दिखाई देता था, लेकिन किसी और को नजर ही ना आता था। बस्ती की एक बुजुर्ग खातून के मशवरे पर अब्बा मुझे एक मशहूर आमिल बाबा के पास ले गए। मैं उनके पास न जाना चाहती थी, इसलिए रास्ते में से ही भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन अब्बा और बस्ती की वो खातीन जो मेरे साथ जा रही थी बहुत चौकन्ना थे। उन्होंने मुझे काबू कर लिया। आमिल बाबा ने मुझे देखा तो फौरन आंखें बंद कर ली और जेरे लब कुछ पढ़ने लगे। मैं खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। मैंने अपनी बस्ती की वो खातीन जो हमदर्दी में मेरे साथ आई थी उन्हें जोर जोर से धक्के भी दिए और खुद से दूर करने की कोशिश करती रही। कभी उन्हें जमीन पर फेंक देती और कभी उन्हें मारने लगती, लेकिन वो खातीन मुझे काबू कर लेने में कामयाब हो जाती।
آہستہ آہستہ میرا جسم پرسکون ہونے لگا تھا اور اب میں نے خاموشی اختیار کر لی تھی اور سکون سے بیٹھ گئی۔ تمہیں اس لڑکی نے کیا تکلیف دی ہے جو تم اس کے پیچھے پڑ گئے ہو؟ کیوں اسے تکلیف دے رہے ہو؟ اچانک یہ عامل بابا کی آواز سن کر میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو میرے سامنے وہی خوبصورت نوجوان یوسف بیٹھا ہوا تھا۔ یہ لڑکی مجھے بہت اچھی لگی ہے، لیکن یہ تو میری کوئی بات سنتی ہی نہیں ہے، اس لیے مجھے اسے سزا دینی پڑی۔ یوسف نے انتہائی لاپرواہ انداز سے کہا، کیا تمہیں تمہاری اس غلطی کی سزا دی جائے یا تم یہ وعدہ کرتے ہو کہ دوبارہ کبھی اسے تنگ نہیں کرو گے؟ اس کے لہجے کو نظر انداز کرتے ہوئے عامل بابا نے کہا، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اس لیے مجھے دھمکیاں مت دو۔ یوسف نے نڈر لہجے سے کہا، اگر تم وعدہ کرو گے کہ دوبارہ اس لڑکی کو تنگ نہیں کرو گے بلکہ کسی آدم زاد یا آدم زادی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤ گے تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا، کوئی سزا نہیں دوں گا۔ لیکن اگر تم میری بات ماننے سے انکار کرو گے تو پھر مجھے تمہیں اپنا قیدی بنانا پڑے گا۔ میں ایسا نہیں چاہتا لیکن میں مجبور ہوں، ایسا ہی کرنا پڑے گا۔ اس کے بدتمیز لہجے کو بھی خاطر میں نہ لاتے ہوئے عامل بابا نے کہا، میں نے تم سے کہا نا کہ میں تمہاری دھمکیوں سے ڈرنے والا نہیں ہوں اور نہ ہی تمہارے قابو میں آنے والا ہوں، اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم میرے راستے میں مت آؤ۔ عامل بابا کی دھمکی کو نظر انداز کرتے ہوئے اس نے جواب دیا۔ اس کا جواب سنتے ہی عامل بابا طیش میں آ گئے اور اونچی آواز سے کچھ پڑھنے لگے تو تھوڑی دیر بعد ہی یوسف کے چہرے پر تکلیف کے اثرات دکھائی دینے لگے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ بہت کرب سے گزر رہا ہے، اور پھر وہ زمین پر گر کر تکلیف کی شدت سے چیخنے لگا۔ عامل بابا اونچی آواز سے نہ جانے کیا پڑھ رہے تھے۔ آخرکار یوسف نے ہار مانتے ہوئے عامل بابا کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، اگر تم وعدہ کرو کہ دوبارہ کسی آدم زادی کو تنگ نہ کرو گے تو میں تمہیں آزاد چھوڑ دوں گا۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے عامل بابا نے انتہائی باروب لہجے سے کہا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب دوبارہ انسانوں کی دنیا میں واپس نہ آؤں گا۔ اس کے رونے کی آوازیں سن کر میں اس کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ میں اس کی مدد کرنا چاہتا تھا لیکن پھر نہ جانے کیوں یہ مجھے اچھی لگنے لگی، لیکن اب میں وعدہ کرتا ہوں کہ دوبارہ کبھی اسے تنگ نہ کروں گا، میری طرف دیکھتے ہوئے یوسف نے کہا، اور پھر عامل بابا سے وعدہ کر لیا۔ چند لمحوں بعد ہی وہ غائب ہو گیا تھا۔ عامل بابا نے مجھے کسی ویران سنسان جگہ پر تنہا بیٹھ کر رونے سے منع کیا تھا۔ ایسی جگہوں پر جنات بکثرت موجود ہوتے ہیں۔ عامل بابا میرا روحانی علاج کر رہے تھے اور میں اب پہلے سے کافی بہتر ہو چکی تھی۔ امید تھی کہ جلد ہی اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جاؤں گی، لیکن اب ہم میں سے کسی کو بھیک نہ مانگنا پڑتی تھی، کیونکہ مہینے کے شروع میں ہی ہماری جھونپڑی میں نہ جانے کہاں سے راشن آ جاتا تھا جو ہماری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کافی ہوتا تھا۔ آج بھی کبوتر دیکھ کر میں خوفزدہ ہو جاتی ہوں۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔